Okay, so as I have already told earlier, so what is the meaning of a notation? तो notation का meaning क्या है? Notation का meaning है तो when you are notating, when you are not denoting something, get my point? Notation means we are denoting something. तो किसको denote कर रहे हैं? जैसे कि हमने मिलर इंडेक्सेस, ठीक है? तो मिलर इंडेक्स ये एक नोटेशन है. किसको डिनोट करते हैं इसमें? इसमें हम फेस को डिनोट करते हैं. ठीक है. द सेम थिंग द नोटेशन ऑफ द क्रिस्टल क्लासेस, क्रिस्टल क्लासेस, और हम इनको क्या बोलते हैं? वी बेसिकली कॉल देम एज पॉइंट ग्रुप. ओके, इट इज कॉल्ड एज HAM notation. Okay, so in these cases, so there are some rules and regulations. It is basically we have followed from our BSc levels. So, and now there is a new, not a new notation. Basically, we don't use in geology. ये chemistry के part में material engineering cases में ये use किया जाता है. ठीक है. तो cases में ये क्या है? It is called as Scholen, SCHOEN Scholen Flies notation. ओके ये थोड़ा सा लेस मेंशन है हमारा जियोलॉजिकल बुक्स में. जितने आप क्रिस्टलोग्राफी बुक देखेंगे इन आवर जियोलॉजी कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे कम दिखेगा. तो इसलिए तो आई थॉट वी जस्ट डिस्कस दिस पार्ट बाय व्हिच यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड. इफ देयर इज एनी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यू कैन इजीली फाइंड आउट. सी व्हाट आई गोइंग टू डू, हम बस यही करेंगे कि HM नोटेशन के कितने क्रिस्टल क्लासेस होते हैं या पॉइंट ग्रुप्स होते हैं? एनीबॉडी? 32. इट इज क्लियर? जस्ट मेक इट इंटरैक्टिव. यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो कि व्हाट आर द answers that you have. Okay, whenever I am asking a question. Okay, तो HM notations हमारे पास कितने हैं? 32. Okay, तो 32 HM notations के लिए तो हमारे पास colon free notations भी कितने होंगे? Anybody? 32 obviously. Get my point? तो हम क्या करेंगे? HM notations we already know. ठीक है. And symmetry element extractions we have, हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. ठीक है. तो वो सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग होंगे. तो मे बी द axis of symmetry that was discussed on the basis of the HM notation. Okay, then there is plane of symmetry. तो यहाँ पे कुछ अलग हो सकते हैं. And what are this? Axis, plane and center of symmetry. ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? These are the HM notations. ठीक है. तो वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कुछ और भी हो सकते हैं या फिर कुछ एडिशनल हो सकते हैं. ठीक है. वी आर गोइंग टू सी दोस थिंग्स. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप थ्योरी. It is the part of group theory. What is the group theory? The group theory is basically nothing. It is the mathematical study or systematic discussion of the symmetry. मतलब it is all about the symmetry. जो भी पढ़ रहे हैं, it may be HM notation, it may be Scholen Flies notations, it may be axis of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry, anything. Those are the part of the group theory, and it is all about the systematic discussion of the symmetry. Okay, it is clear? Okay, so now come to here, be focused here because it is a new part for you guys, so that's why be focused here. As we have seen, in case of the HM notations, there are symmetry elements just like the axis of symmetry, plane of symmetry, and center of symmetry. So in case of the Scholen Flies notation, extra हो गया. In case of the Scholen Flies notations, यहाँ पे क्या होता है? तो in these cases there are basically how many symmetry elements? There are basically 5. Yes, 5. There is 5. So 5 symmetry elements are there. So I am just trying to explain one another again. Okay, so what it is? First thing is your just try to listen carefully. Okay, this is your identity element. Getting my point? इसका एक सिंबल भी है. हम इसको क्या लिखते हैं? इट इज गोइंग टू बी रिटन एज कैपिटल E. इज इट क्लियर? ओके, इसका सिंबल क्या है? इट इज द सिंबल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिनोट देम की नोटेशन. ये कौन सा नोटेशन है? Scholen Flies नोटेशन. ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज C1. गेटिंग माय पॉइंट? कहीं पे भी अगर C1 लिखा हुआ है, Scholen Flies नोटेशन है, उसका मतलब क्या है? वो आइडेंटिटी एलिमेंट. अभी समझते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है. ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट मींस जो हमारा A1 होता था. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज A1? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने फोल्ड? हाउ मेनी फोल्ड? 1 फोल्ड सिमेट्री.
1, and it is the after rotating how much degree it is going to give you the same angle 360. that means इसका कोई अलग फेस नहीं है, मतलब कि after every 360 degree rotation it is going to give you identity means it is the single one. ये इसका कुछ और है ही नहीं, मतलब ना 5 डिग्री में, ना 90 डिग्री, ना 70 डिग्री, ना 128 डिग्री में इट इज गोइंग टू गिव द सिमिलर अपीयरेंसेस, इट इज नॉट गोइंग टू गिव दैट. ओके, तो दिस C1 इज बेसिकली, मैं साइड साइड से लिखते जा रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना. तो C1 नोटेशन इन केस ऑफ दिस कॉन्फ्लाइज नोटेशन, ओके, तो इट इज सिमिलर विथ A1 इन केस ऑफ द HM नोटेशन. समझ आया ना? देखो हमने ऑलरेडी HM नोटेशन पढ़े हैं, वहां से सिमेट्री एलिमेंट कैसे एक्सप्रेशन करते हैं वो भी पढ़े हैं. अगर हम C1 से कोरिलेट कर लिए कि C1 का मतलब A1, तो फिर हमारा ये वाला जो जर्नी है हम आसान कर देंगे. तो वहां से फिर डाटा एक्सट्रैक्ट करके स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑल द थिंग्स वी कैन डू. ओके, सो नाउ कम टू हियर. This is one symmetry element, okay, identity element. Second thing is your proper axis. यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है. वन होता है प्रॉपर एक्सिस एंड अदर इज योर इम्प्रॉपर एक्सिस. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो होगा. ठीक है, तो प्रॉपर एक्सिस, तो प्रॉपर एक्सिस केसेस में क्या होता है, इनके सब इसको पहले देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा. इसका सिंबल ये होगा, उसका डायरेक्टली ये लिख देते हैं नोटेशन. तो ये इसका नोटेशन क्या होगा, C N. यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, C1. तो यहाँ पे CN मीन्स एनीबॉडी. तो N नंबर ऑफ फोल्ड, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखे थे, AN. ठीक है, दिस AN can be A1, A2, A3, all the things. Okay, the same thing is going to be happen here. In these cases, what will happen? The proper axis is going to be denoted as CN. ठीक है, CN means the examples like examples are C2, क्योंकि C1 यहाँ पे E है. गेट माय पॉइंट, C1 यहाँ पे E है, तो कौन से से शुरू होगा ये, C2 से, C3, C4, C6. These are the equivalent of A2, A3, A4 and A6 in HM notation. Is it clear for everybody? अभी तक सबको समझ में आया? जो A2 हम HM नोटेशन में लिखते हैं उसको हम स्टूडेंट नोटेशन में क्या लिखेंगे, C2. A3 को लिखेंगे C3 में, A4 को लिखेंगे C4 में. तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक या जनरलाइज्ड जो नोटेशन है दैट इज CN. एंड N क्या है, N इज द fold of rotation, or yeah, we can say fold of rotational axis of symmetry. Is it clear, guys? Okay, so now come to the third element. It is called as SIM, plane of symmetry. This is in case of the Sonnenfleisch. Okay, Sonnenfleisch notation, plane of symmetry. इसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, it is very important. It is going to be written as sigma to the power n, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं sigma n. ओके, n क्या रहेगा, n कहाँ पे रहेगा, तो सुपरस्क्रिप्ट में. ठीक है, ओके, तो this n is basically what? It is basically the order of operations. So what is sigma n means, n is basically the order of operations. So we are going to see some examples by which you can easily understand what is the sigma n. Understood? ये जो sigma n, Cn, C1 ये सब अभी तक हमने, ये बहुत प्रिलिमिनरी केसेस है, इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पहले समझ जाओ, उसके बाद हम वो वाला देखेंगे. ठीक है, ओके. प्लेन ऑफ सिमेट्री केसेस में फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज योर, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस प्लेन को हम समझ रहे हैं, तो इट में बी वर्टिकल, इट में बी हॉरिजॉन्टल, और इट में बी डाइहेड्रल. डाइहेड्रल मींस इट इज बाइसेक्टिंग. ओके, मतलब मान लो कि यहाँ पे दो फेसेस हैं. ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, इट इज लुक लाइक परपेंडिकुलर. ठीक है, एक ऐसा फेस है, ठीक है, और एक ऐसा फेस है. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, this is your vertical. So what is the dihedral? Dihedral means if there is any plane which is bisecting, ये इसको bisect कर रहा है, मतलब इक्वल एंगल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइहेड्रल. ये सब केसेस कहां पे आता है, इन केस ऑफ द 4mm. Getting my point? In case of the 4mm, what it will be? What will the general form name? Ditetragonal. Getting my point?
तो ये कौन से केसेस में ट्राइगोनल पिरामिड होता है, ना सॉरी टेट्रागोनल पिरामिड, ओनली इन केस ऑफ दी 4 टेट्रागोनल पिरामिड। ठीक है, तो केसेस में क्या होता है कि 4 केसेस में उसका जो नंबर ऑफ प्लेन्स होता है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है, सॉरी डबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अगर मान लो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे 4 फेसेस है, तो बाई एडिंग एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 मिरर प्लेन्स, यहाँ पे कितने मिरर प्लेन्स हैं एनीबॉडी, 4 मिरर प्लेन्स। 4 डिवाइड होगा 2 2, तो 4 मिरर प्लेन्स, तो 4 मिरर प्लेन से ये डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 8 फेसेस। ठीक है, तो दिस इज द डाइहेड्रल। तो थोड़ा सा समझ लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री केसेस में 3 टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आर देयर। वन इज योर वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैंने पीओएस में लिख रहा हूं। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी सिंबलाइज्ड एज सिग्मा वी। सिग्मा मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, वी मीन्स वर्टिकल। ओके ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल axis. See, you will say, sir, it is vertical and you are saying it is parallel. What does it mean? It means if this is your principal axis, ठीक है, this is your principal axis, the plane will be like this. Get my point? It is not like this. ये ऐसा नहीं है, ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, this is your horizontal, okay, and this is your vertical. Getting my point, everybody? So now I am going to write for the horizontal. So horizontal plane of symmetry, it is going to be written as sigma x. Clear? And it is going to be parallel or perpendicular to the principal axis? Perpendicular to principal axis. Okay. Okay. So now come to the dihedral. Dihedral means, देखो, di means two, hedral means faces. Okay, or you can say hedron. Hedron means it is the singular. Hedron means face. ठीक है, hedral means the number of, it is the plural form. तो dihedral मतलब टू फेस को जो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो इट विल बी द डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड, तो कैसे डिनोट करेंगे इसको, इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज सिंपली, देखो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है इनका कोई रियल वाला नहीं होता है, तो सिंपली ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो देख लो, और उसका जो कैसे उसको डिफाइन करोगे कि हाउ इट इज द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाइहेड्रल, इट इज आई एम गोइंग टू टेल। ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली डाइहेड्रल मींस कट कर रहा है फेसेस को, ये हॉरिजॉन्टल को, तो हॉरिजॉन्टल एक ही हो सकता है। गेट माय पॉइंट, हॉरिजॉन्टल एक हो सकता है, दो तीन ऐसे नहीं हो सकते प्लेन, क्योंकि वो सेम ही है, एक ही प्लेन। वर्टिकल केसेस में सी इफ दिस इज योर एक्सिस, एक अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रह गया उसका मतलब फिर आप बोलोगे सर इस साइड में, ये तो सेम ही है ना, ठीक है, इट इज द सेम थिंग। बट इन केस ऑफ द वर्टिकल, तो वर्टिकल केसेस में मे बी इट कैन बी डिनोटेड एज दिस, मे बी ये ऐसे हो सकता है, ओके, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मे बी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए देयर विल बी नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स, बट ए सिंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन कैन डू द सेम ऑपरेशंस। अगर बार ज्यादा रखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन वो भी सेम है, अगर सिंगल रखेंगे वो भी सेम ऑपरेशन ही करेगा। ओके, तो दैट्स व्हाई द डाइहेड्रल पॉइंट प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड रिमेंबर जो कि मैं बताया कि सिंबल केसेस में, तो इट कैन बी बाइसेक्टिंग द C2, मैं यहाँ पे C2 लिख रहा हूं, A2 नहीं, C2 एक्सिस, ठीक है, मतलब ये अगर मान लो कि यहाँ पे एक टू फोल्ड एक्सिस है, यहाँ पे एक टू फोल्ड एक्सिस है, टू फोल्ड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है, ये मैं HM नोटेशन में लिख रहा हूँ, अगर उसको आप इसमें लिखोगे इट विल बी C2, इट विल बी C2, इट विल बी C2, ठीक है, और इनके बीच में अगर कोई प्लेन जा रहा है एंड इट इज बाइसेक्टिंग देम, तो इट विल बी कॉल्ड एज डाइहेड्रल plane of symmetry. ठीक है, just try to understand the notation, then after that we are going to apply up to the 32 crystal classes. Okay, okay, so ये वाला चीज हो गया dihedral point plane of symmetry. It is not point of symmetry, it is the plane of symmetry. Okay,
So three things we have seen under the plane of symmetry in Sunday's notation. One is your vertical plane of symmetry, that is going to be denoted as sigma v, and sigma is for the horizontal plane of symmetry. And in case of the dihedral plane of symmetry, it will be going to bisect angle between two C2 axis. Okay, okay, sorry, I got it. But the thing is that it is only going to be bisect the C2 axis. It is not going to bisect the C3 axis. Yes, C4, yeah, C6. Okay, so I forgot that part. Okay, maybe I explained in a different way, but it is always going to be bisect the C2 axis. Okay, so that's why it is the dihedral. Okay, okay. So the plane of symmetry part is done. Now we have already discussed the proper axis. Okay, proper axis means there will be no roto inversion. Getting my point ना? तो proper axis. तो in the roto inversion in case of the HM notation, ठीक है? But यहाँ पे एक improper axis भी आता है. ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? Improper axis. इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको कैसे डिनोट करते हैं? एस सबस्क्रिप्ट में एन. क्लियर? तो इम्प्रॉपर एक्सिस मींस, देखो एक छोटा सा बात यहां पे समझना. तो इन केस ऑफ दी एच एन नोटेशन हमारे पास क्या था? रोटो इन्वर्जन. ठीक है, means rotation plus inversion. But in case of this Cornflies notation, it is going to be rotary या फिर roto reflection. Getting my point, everybody? Roto reflection axis. In these cases, so what will happen? The rotation is going to be followed by reflection. ठीक है, ठीक है. तो अगर कहीं पे भी एमसीक्यू में या फिर एमएसक्यू में आता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ रोटो इन्वर्जन इन दिस कॉन्फ्लाइज नोटेशन, इट विल बी रोटो रिफ्लेक्शन. नहीं कि रोटो इन्वर्जन यहाँ पे फिर लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं है. इट विल बी रोटो रिफ्लेक्शन या फिर रोटरी रिफ्लेक्शन. ओके, सी व्हाट आर द एग्जांपल्स? द एग्जांपल्स विल बी S1, मैंने लिखा था ना SN, एन केसेस में 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है. तो ओनली 1 एंड 2. तो 1 केसेस में क्या है? S1 मींस रिफ्लेक्शन. हमारा रिफ्लेक्शन को हम एचएम नोटेशन में क्या लिखते हैं? स्मॉल m या फिर 1/m, जो भी, लेकिन सिंपली रिफ्लेक्शन है तो उसको m लिखो, ठीक है, स्मॉल m. S2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इट इज दी इन्वर्जन. एचएम नोटेशन में क्या होगा? स्मॉल i, और एचएम ये है तो सिंबल एचएम नोटेशन में 1 बार. ठीक है, ये याद रखना. कहीं पे अगर इन्वर्जन आ रहा है उसका मतलब इट विल बी S2 इन Sonnenfleisch notation. अगर कहीं पे रिफ्लेक्शन आ रहा है दैट विल बी S1. Getting my point? So these things you just have to remember. And in case it is also the inversion को हम और भी एक तरीके से, इसको एक अलग में सिमेट्री एलिमेंट में देख देता हूं. इट विल बी दी सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री केसेस में क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री केसेस में इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज CI, और द सेम थिंग इट इज द S2. और कहीं पे CI लिखा हुआ है या फिर S2 लिखा हुआ है, इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री. गेट माय पॉइंट? देखो, अगर मान लो कि S2 केसेस में S2, ठीक है, S2 का मीनिंग यहाँ पे क्या है? S2 का मीनिंग ये है कि इट इज दी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, एंड C2. इसका मीनिंग क्या है? तो यहां से डिकोड कर सकता है कि अगर मैं लिख रहा हूं कि रो H एंड C2, नहीं सॉरी रो बोल रहा हूं, सिग्मा H एंड C2. सिग्मा H का मीनिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री. मींस यू हैव ए लाइक दिस कन्फिगरेशन, ठीक है, इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड यू हैव ए C2. C2 means two-fold. Getting my point? तो this is going to be give you the S2, that is your inversion. ठीक है, कैसे? अगर मान लो कि ये हो गया हमारा कोई मोटिव है that is above the equator plane, इसको अगर हम कितना डिग्री रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और इन्वर्जन होके कहाँ पे आएगा? इट इज गोइंग टू गिव यू लाइक दिस. ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़े थे? ये रोटरी रिफ्लेक्शन.
गेटिंग माय पॉइंट? तो रोटरी रिफ्लेक्शन केसेस में यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया, हाँ रोटरी रिफ्लेक्शन, क्योंकि S2 क्या था, रोटरी रिफ्लेक्शन ना, तो यहाँ पे आया 180 डिग्री में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रोटेशन हुआ है, फिर उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन, आज इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन, इट इज गोइंग टू गिव यू द एनीबॉडी सर्कल, ठीक है, एंड द सेम थिंग इट इज गोइंग टू बी रोटेट अगेन 180 डिग्री, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड हियर, ठीक है। नाउ एज पर आवर HM notation, it is look like the inversion ना, get my point? We have started from this point and we got a circle here and we ended here. तो in our HM notation हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I center of symmetry, get my point? ये सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे इन्वर्ट हो जाता था, इट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी? तो इसलिए हमने यहाँ पे S2 को इन्वर्जन लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं, नेम द ऑपरेशन विल बी रोटो रिफ्लेक्शन, नॉट रोटो इन्वर्जन, ठीक है। रोटर इन्वर्जन होता तो यहाँ पे रोटेशन होता, फिर इन्वर्जन होके यहाँ पे आ जाता, रिफ्लेक्शन है इसलिए इट इज एग्जैक्टली बिलो द प्लेन। सी द थिंग इज दैट ये मैंने एक C2 फोल्ड लिया, C2 एक्सिस लिया, ठीक है, इसका मीनिंग आफ्टर एवरी 180 डिग्री इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग, ओके। देन वी हैव ए H horizontal, H means horizontal, okay। तो I have started a operation from this point, ये यहाँ पे इक्वेटर प्लेन के ऊपर है, सॉलिड है, तो इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे, यू गाइस आर फॉलोइंग माय पॉइंट, 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा अभी, रिफ्लेक्शन, बिकॉज वी आर डूइंग रोटो रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज आवर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर यहाँ पे रोटेट करेंगे फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक सर्कल देगा, गेट माय पॉइंट? इट इज गोइंग टू गिव यू अ सर्कल, द सेम थिंग अगेन वी आर गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस है, उसके अराउंड में हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री, फिर उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन देगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, तो मैंने ये सबको इरेज कर दिया। अभी अगर हम इसको, ये कौन सा क्या है, दिस इज योर S2 एज पर दी सोनप्लाइज नोटेशन, अगर हम इसको देखेंगे कौन से केसेस में, HM नोटेशन केसेस में, ये क्या होगा, इट इज सिंपली द इन्वर्जन, ये सेंटर ऑफ द सिमेट्री, ये सही है सेंटर, सेंटर के थ्रू इट इज द ओनली द इन्वर्जन, गेट माय पॉइंट? डायरेक्टली इन्वर्जन है, तो इसको इसलिए S2 is going to be another, it is going to be written as 1 bar when it will be in the HM notation. It is clear guys? Okay, so these are the 5 symmetry elements you just have to remember in order to do this one place notation. तो उसके बाद हम अभी 32 क्रिस्टल क्लासेस को तुरंत करेंगे, उसके बाद ब्रैक क्वेश्चन, देन उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन, ओके। मैं एक छोटा सा एक जो भी अभी तक पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, उसके बाद देखो मोस्टली जो सोनप्लाइज नोटेशंस होते हैं ना, दे आर फॉर दी मॉलिक्यूल्स, मतलब मोस्टली यूज इन केमिस्ट्री, ठीक है, बट हम जो पढ़ते हैं बेसिकली वी डील विद द मिनरल्स, दैट मीन वी आर बेसिकली द सॉलिड्स, तो सॉलिड केसेस में हम क्या करते हैं, HM नोटेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। सो फॉरगेट अबाउट दैट, सो we are going to see some symmetry operations, ठीक है, अभी तक जो पढ़े in the Sonflies notation, and the HM notation so far we have discussed now, ठीक है, okay। So I am just trying to write from the beginning, we have proper rotation, proper rotations, that means 2 pi by n, ठीक है, अगर 2 फोल्ड है तो 180, 3 फोल्ड है तो 120, 4 फोल्ड है तो 90, ठीक है, ऑल द थिंग्स। सोनफ्लाइज नोटेशन केसेस में हम किसको कैसे लिखेंगे, Cn केसेस में, तो C1 एग्जांपल्स आर C1, no not C1, C1 will be our identity element, ठीक है, तो C2, C3, C4, ठीक है, these are for our सोनफ्लाइज नोटेशन। लेकिन हम HM नोटेशन में क्या लिखेंगे, सिंपली n, मतलब 2, 3, 4 and 6, okay, so these things, okay, and for identity element it is going to be written as E
which is basically nothing, this C1, but in these cases we will only retain 1 HM rotation cases. Okay, clear? Okay, so now come, मैं just एक summary दे रहा हूँ, ठीक है? And for the improper axis, या फिर improper rotation, it will be SN. SN is what basically? One horizontal, getting my point? One horizontal plane of symmetry and CN. गेटिंग माय पॉइंट. हम बस ये अभी यूज करेंगे ये वाला, जैसे यहाँ पे मैंने डिनोट किया ना, तो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिनोट, बट इन दिस केसेस इट विल बी एन बार, दैट विल बी योर सेंटर सिमेट्री प्लस जो हमारा ये, जैसे एग्जांपल लिखेंगे 2 बार. 2 बार मींस 2, सॉरी ये 1 बार, सॉरी ये 1 बार. 1 बार मींस आवर सेंटर सिमेट्री एंड A2. ठीक है, द सेंटर ऑफ सिमेट्री दैट मींस इन्वर्जन प्लस रोटेशन. ठीक है, बट इन दिस केसेस इम्प्रॉपर रोटो रिफ्लेक्शन. क्लियर? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट फॉर द इन्वर्जन. तो इन्वर्जन केसेस में क्या होगा? इन्वर्जन केसेस में इट विल बी आई. ठीक है, एंड ये रोटेशन में 1 बार. ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी मिरर प्लेन perpendicular to principal axis, it is going to be written as anybody sigma h. ठीक है, एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इट विल बी m मिरर प्लेन एंड इट विल बी योर cn. ठीक है, एंड बट इन केस ऑफ HM रोटेशन इसको क्या लिखेंगे? n over m. गेटिंग माय पॉइंट? n over m means examples are 2 over m, 3 over m, like that. जस्ट ट्राई टू कोड, तो थोड़ा सा कोड लीड करो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, इफ देयर इज एनी मिरर प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम क्या लिखेंगे? इट इज गोइंग टू बी रिटन एज, पैरेलल है तो इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकल. क्लियर? एंड आल्सो द पैरेलल इज आल्सो गोइंग टू बी रिटन एज डी, डाइहेड्रल. गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बताया था कि डाइहेड्रल केसेस में हम उसको भी क्या लिखते हैं? दे आर आल्सो वर्टिकल. गेटिंग माय पॉइंट? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. Are you guys getting me? Principal axis always perpendicular, तो उसको पैरेलल है, मतलब ये वर्टिकल प्लेन्स है. ठीक है, ओके, सो these things are clear up to this one. Now we are going to quickly correlate the symmetry elements. आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान चाहिए होगा इसको करने के लिए. अभी तक जो भी समझ में आया है, ये वाला टेबल समझ में आ गया ना? ये वाला टेबल अगर आपको समझ में आ गया होगा, then you can easily do all the things. ठीक है, okay, so now come to the symmetry elements of 32 crystal classes. ठीक है, I'm starting from the lowest symmetry 1. एक क्या है? C1. तो C1 को मैं क्या लिखूंगा HM नोटेशन में? हम इसको HM नोटेशन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी नो द HM नोटेशन. तो हम सोनिफाइज नोटेशन को HM नोटेशन में कन्वर्ट करके ही समझेंगे. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी रिटन एज A1. A1 मींस 360 डिग्री रोटेशन, और इट इज आल्सो गोइंग टू बी रिटन एज E. दिस इज व्हाट? इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, ओके, तो नाउ वी हैव CI. CI का मीनिंग क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, एंड इन HM notation how it will going to be written as I, or you can say 1 bar. Okay, okay, so 3 bar. So the third number, third is your, थोड़ा सा ध्यान देना, third is your CS. Clear? It is basically what? It is basically your plane of reflection, or simply the reflection plane. इसको हम कैसे लिखते हैं? That is your sigma, and if that is mirror plane is vertical, okay, so it will be your sigma v. If vertical cases में तो it will be sigma v. अगर if it is horizontal it will be something over m, that means sigma h. Is it clear for everybody? Okay, now come to the fourth number. तो fourth number क्या है? It will be Cn. तो Cn means n fold rotation. Okay,
ओके, एंड इसको हम कैसे लिखेंगे? ओनली एन में। अगर टू फोल्ड है तो टू लिखेंगे, थ्री फोल्ड है तो थ्री लिखेंगे, फोर फोल्ड है तो फोर लिखेंगे। ओके, अभी से थोड़ा सा डिफिकल्टीज इंक्रीज होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे लिखता हूँ। सी, सी एन वी, समझ में आया व्हाट इट इज? सी एन वी, इसका मीनिंग क्या है? सी एन वी मतलब सी एन प्लस एन सिग्मा वी। सी, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आप हम लोग समझेंगे। अगर कहीं पे C2V लिखा हुआ है, C2V, इसका मतलब C2 है एंड टू नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स है। गेट मी पॉइंट? इसको थोड़ा सा भी नहीं लिखेंगे, सिग्मा V। इज इट क्लियर? अगर इसको HM नोटेशन में लिखेंगे तो व्हाट इट विल बी? कौन सा वाला HM नोटेशन में टू फोल्ड रहता है एंड दो मिरर प्लेन रहता है? 2mm। इज इट क्लियर? 2mm केसेस में वन फोल्ड, टू फोल्ड एक्सिस एंड टू मिरर प्लेन आएंगे, तो इट इज दी सनफ्लाइज नोटेशन ऑफ 2mm। तो ये HM नोटेशन में, ये सनफ्लाइज नोटेशन में। C2B का मतलब 2mm है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर ऑल दी सनफ्लाइज नोटेशंस। उसके क्या करेंगे? यहां से हम सिमेट्री एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि सनफ्लाइज नोटेशन में है, फिर वहां से हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे एचएम नोटेशन में, और फिर we guys already know कि यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं। Is it clear for everybody this one? Then I am going to ask you another question. तो C4V, anybody who can decode what are the symmetry elements present here? C4 plus 4 number of vertical plane of symmetry. Is it clear? अगर HM नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A4 and 4M, ये कौन सा वाला HM नोटेशन होगा? In which HM notation of crystal classes, in which crystal classes the HM notation contains one fold of one axis of four fold symmetry and four mirror plane, 4mm. Very good. So same thing as in case of the 6mm, we can also written as one plus notation is going to be written as C6B. Is it clear for everybody? इसको अगर हम आराम से लिखेंगे, CNV का मतलब क्या है? ऑन, मतलब एक होगा ऑन एन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड ये एक हो गया, एंड एन नंबर ऑफ, एन सिंपली देता हूं, एन नंबर ऑफ, जो भी यहां पे एन होगा, ठीक है, एन नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? ओके, एक सिंपल चीज है, यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है। अगर सी एस लिखा हुआ है, ठीक है, सी एस कौन से केस में लिखते हैं? ये वाला सी केस को हम और क्या लिख सकते हैं? C1 भी, क्योंकि C1 भी का मतलब क्या है? यहाँ पे A1 होगा प्लस एक मिरर प्लेन होगा, ठीक है। तो सिंपली ये कौन सा केसेस में होता है? इट इज इन केस ऑफ दी रोटो रिफ्लेक्शन, तो इट इज बेसिकली योर CS, ठीक है। ये थोड़ा सा एक एग्जांपल याद रख लेना कि CS इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द इक्विवेलेंट, दैट इज योर C1V। ओके, इट इज द CNV। तो नाउ आई एम राइटिंग 6 केसेस में CNH, सेम थिंग, सेम थिंग। क्या होगा यहाँ पे? CN होगा प्लस द n नंबर ऑफ रो H। इज इट क्लियर? तो जैसे कि हमने CNV केसेस में देखा, तो CNH केसेस में ये लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नो, द थिंग इज दैट, मैंने पहले क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल कितना हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कितने हो सकते हैं? ओनली वन। Horizontal plane always going to give you only one. There will be only one horizontal plane and that is the sufficient to do any symmetry operations. तो यहाँ पे हमने n कैसे लिख दिए? मतलब कि 6 horizontal mirror planes से लिख सकते हैं क्या? ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत करना कि कब जब आप CNH को डिकोड कर रहे हो तो दैट विल बी CN प्लस n रो, सॉरी, सिग्मा H, मतलब इतना हॉरिजॉन्टल प्लेन से, सॉरी ये क्या था? भी था, भी CNV, ठीक है। तो V केसेस में आप ये लिख सकते हैं कि इतने वर्टिकल हैं, क्योंकि वो वर्टिकल मींस इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, बट ये केसेस में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता है देयर बी ओनली वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट विल बी ओनली गोइंग टू बी रिटन एज सी एन एंड वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको अगर हम डिकोड करेंगे वर्ड में तो इट विल बी ऑन एन फोल्ड एक्सिस, ठीक है, ऑन वन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस ए हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेन, ठीक है। ओके, तो वी आर गोइंग टू सी क्विकली सम एग्जांपल्स। Okay, we are going to quickly set some examples. Just like first starting from C to H, it is going to give you what? C2 and only one horizontal mirror plane. But it will be, इसको अगर डिकोड करेंगे तो HM में क्या होगा? A2 and one mirror plane, which is basically horizontal. And this is your principal axis. What are the HM notation that we can expect? That is your 2 over m. Very good. Getting my point? The same thing that we can write here in case of the C4H. तो you can easily convert ना, अगर 2 over m है तो that will be your C2H. Okay, अगर C4H है it will be similarly you can do, that will be your 4 over m. अगर 6 C6H है, sorry H क्या लिख रहा हूँ, that will be your, अगर C6H है that will be your 6 over m in HM notation. Is it clear? तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो एक टू फोल्ड एक्सिस है एंड एक मिरर प्लेन, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी रिटन एज C2H इन स्वनप्लाइज नोटेशन। ओके ओके ओके, अभी हम क्या करेंगे, सेवेंथ नंबर वी आर गोइंग टू राइट फॉर DN। तो DN का मतलब C खत्म हो गया, अभी अभी D आएगा, तो DN का मतलब क्या है, CN प्लस NC2, सिंपल थिंग। तो एनीबॉडी व्हाट इज CN प्लस NC2? अगर मैं D2 लिख रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, C2 मतलब टू फोल्ड एक्सिस प्लस टू नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस, सिंपल थिंग। गेटिंग ए पॉइंट? ओके, तो in this way you can write for D4, you can write for D3, okay, all the things you can write. Okay, okay, so there is some much more, there is some restrictions also, those parts are higher level so I don't have to discuss here. ओनली मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ओके, 8 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, ये था सिंपली DN, ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, DNH, ठीक है। DN के एच केसेस में क्या है, सिंपली मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, यू गाइस कैन डिकोड। ओके, तो व्हाट इट विल बी, CN प्लस NC2 प्लस N सिग्मा V प्लस सिग्मा H, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं कि एज एन एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू राइट D2H, व्हाट इट विल बी फर्स्ट sigma 2 sigma 3. Okay, this is C2. Okay, so in this way if we will see this is nothing, it is only the D2। अभी D2 देखे थे ना, देखो it is the D2, तो you can also write in this way also। so if you are going to do the HM notation conversion, okay, तो ये केसेस में आपको क्या मिलेगा, तो ये केसेस में you are going to get 1 two-fold axis, 2 two-fold axis and 3 mirror plane, that is in case of E 2 over m, 2 over m, 2 over m. Okay, so 2 over m, 2 over m, 2 over m is going to be written as D2H. Okay, so in this way you can also write for the 4 over m, 2 over m, 2 over m, okay, 6 over m, 2 over m, 2 over m, ठीक है। तो D4H is going to be 4 over m, 2 over m, 2 over m, and D6H will be
your 6 over m, 2 over m, 2 over m. ठीक है. Okay, so quickly I'm going to complete the ninth number, that is your d n d. ठीक है, d n d का मतलब क्या है? cn प्लस nc2 प्लस n सिग्मा d. ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, d3d का मतलब क्या है? तो इट इज गोइंग टू गिव यू a3, 3a2 and 3 मिरर प्लेन. ओके, तो व्हाट इट विल बी? इट इज बेसिकली आवर रोटो इन्वर्जन. ठीक है, तो डी केसेस में, ये केसेस में रोटो इन्वर्जन. तो ये कौन सा वाला होगा? दैट इज जो 3 बार 2 over n. ओके, सेम केस इन केस ऑफ दी d2d केसेस में क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 बार 2n. सो यू से सर वाई दी 4? यहाँ पे तो 4 कुछ सिंबल ही नहीं है, तो इट इज जो d4d है एंड d6d है, ठीक है, दे आर बेसिकली गोइंग टू कंटेन द इम्प्रॉपर एक्सेस. So it is some exceptional cases. In these cases it will be going to be written as. तो ये D2D में 4 नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. ओनली 2 to 3 पार्ट इज लेफ्ट, सो वी आर गोइंग टू क्विकली कवर दैट. तो 10th केसेस में क्या होगा? 10th केसेस में SN, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि SN का क्या होता है. 1 SN एक्सिस. ठीक है, अगर सिंपली इसका जो कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मूला देखोगे ना, तो इट विल बी लाइक आइडेंटिटी फैक्टर ई और आइडेंटिटी एलिमेंट Cn डिवाइडेड बाय 2 प्लस Sn. समझे? तो ये वाला थोड़ा सा अभी के लिए भूल जाओ, तो ये वाला थोड़ा सोच जाओ. ओनली Sn मींस 1 Sn एक्सिस. ठीक है, अगर H1 है दैट इज योर CS सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर H2 है दैट इज योर CI, okay, अगर H3 है दैट इज योर C3H. okay, so these things will going to be continued. okay, now come to the 11th number, that is your T is basically your rotational axis of tetrahedron. So the complexity is going to be increased. okay, तो T यहाँ पे जो 5 अभी मैं बताऊंगा ना, they are basically nothing, they are basically going to be only the isometric system. यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ. They are basically going to be isometric system. T means it is your T 2 3 को हम क्या बोलते हैं? Anybody? Tetratoid. You guys are getting? 2 3 को हम क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म को? टेट्राटॉइड. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? द रोटेशनल एक्सेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन व्हिच आर हैविंग 3 2-fold एक्सेस एंड 4 3-fold एक्सेस. ठीक है, तो इसको हम अगर इसमें लिखेंगे तो सोनप्लाइज नोटेशन में ओनली टी, अगर कहीं पे टी लिखा हुआ है सोनप्लाइज नोटेशन में, उसका मतलब ये 2 3 है एचएम नोटेशन में. ठीक है, ये दैट विल बी सिंपली ई 8C3 3C2. ठीक है, द सेम थिंग we have 5 crystal classes in cubic crystal system. तो डी अगर कहीं पे लिखा हुआ है उसका मतलब दिस इज योर 4 बार 3 है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. ठीक है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लो. 13th केसेस में अगर एज कहीं पे लिखा हुआ है, इट इज सिंपली दी 2 over m 3 बार. ठीक है, और 14 केसेस में, तो 14 केसेस में क्या होगा? ओ. ओ मींस इट इज योर 4 3 एंड 15 केसेस में इट विल बी योर OH. it is your highest one, OH 4 over m 3 bar 2 over m. Clear? Okay, so this is a question answer part. So I think you guys should participate in this thing. So let me just show you. These are very easy questions, very easy questions, just like the 1 mark for the JAM questions, not for the GATE question. GATE का थोड़ा सा एक अगर आएगा तो 1 mark में. It's not like that. It's very easy questions. Okay, so how many point groups out of 32 point how many point groups out of 32 point groups are planar point group? Anybody? 10. Okay, so you guys already know about it. It is the combination of rotation and reflection. It's very easy. Okay, what is the number of plane of symmetry? What is the number of planes of symmetry present in the general form of a tetragonal dipyramid? Okay. Which crystal classes have the general form that is called as tetragonal dipyramid? Anybody? This is just for your hint. Let me tell you, this is your 4 over m tetragonal dipyramid. So, how many planes of symmetry are there? 1.
Okay. The total number of point groups which contains the center of symmetry in the symmetry elements configuration is what it will be. कल ही हमने किए थे. So it will be I think 11, but just check. Okay. The difference in the number of mirror planes in the crystal classes 4 over m, 2 over m and 6 over m. यहाँ पे कितना है mirror planes? फास्ट सिंबल कितना देता है? फास्ट सिंबल क्या बोलता है यहाँ पे? 1 axis of 6 fold symmetry and 1 mirror plane. सेकेंड सिंबल क्या बोलता है? 3 axis of 2 fold symmetry and 3 mirror plane. थर्ड सिंबल क्या बोलता है? 3 axis of 2 fold symmetry and 3 mirror plane. This is the symmetry elements that you can extract, and obviously there is a center of symmetry. So you can see what are the number of mirror planes here. It is 7 and यहाँ पे 1. The difference will be 6. Okay. Okay. Okay, so determine the number of mirror planes in the given general form, that is your hexagonal scalenohedron. तो hexagonal scalenohedron किसी को पता है? What it will be the crystal classes? तो यहां से देखो वो वाला भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका क्रिस्टल क्लासेस क्या है. अगर आप अच्छे से पढ़े हैं या फिर समझे हैं तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम हियर. तो जस्ट ट्राई टू डिकोड. ये इसका मीनिंग क्या है? लेंस का टू फोल्ड. ये क्या है बीच में? दिस इज योर 3 बार और ऑटो इन्वर्जन. ठीक है, मैंने इसलिए बोला था कि सिंबल से भी आप डाटा निकाल सकते हो. ठीक है, इट इज योर 3 बार. ठीक है, एक 3 बार है. ठीक है, एंड कितने 2 फोल्ड एक्सिस हैं? जस्ट काउंट. 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1. ओके, हाउ मेनी? 1, 3, 2 folds. And how many mirror planes are there? Let me erase for you. How many mirror planes are there? 3. So what will be the crystal class? So you can easily find out the number of mirror planes here also, 1, 2, 3. But how many what will be the crystal class? So कौन सा केसेस में ये होगा? Is it 3 bar 2 over m? 3 बार 2 over m. इसका मीनिंग क्या है? इसका थोड़ा सा इसको भी चेक कर लेना. ठीक है, तो ऐसे ही आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि क्रिस्टल क्लास क्या है. या फिर ये वाला अगर जीरो डायग्राम दे दिया और आपको पूछा कि इसका क्रिस्टल क्लास का नेम क्या है, तो आप यहीं से इसी से ही आप निकाल सकते हैं. सिमेट्री एलिमेंट पता लग गया, देन यू कैन इजीली फिट कि कौन सा वाला फिट होगा यहाँ पे. ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला चेक कर लेना. ठीक है, ओके. यहाँ पे नंबर ऑफ मिरर प्लेन्स आप बताओ कितना होगा? 3. क्या? Okay, so question number 6. Determine the number of additional mirror planes in the dihexagonal dipyramid class rather than the ditrigonal dipyramid. Dihexagonal dipyramid, it will be 6 over m, 2 over m, 2 over m. तो ये वाला आप बताओ डाइटेट्रागोनल डाइपिरामिड क्या है? Ditrigonal dipyramid, it is your 6 bar. Is it okay? 6 बार को अभी हम क्या लिखते हैं? P over M. This is your ditrigonal dipyramid. तो हिंदी देखो, अब जितने भी पढ़ो ना तो किसी से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, ओके. तो what are the number of mirror planes are here in case of this? In case of this, what are the number of mirror planes? What is the difference? 6. ठीक है, okay. So I think not so many questions are here, but in the next class, that may be tomorrow,